Hey everyone, welcome back once again to Geology Numerical Part 4. In this series, we have done the Part 1, the Part 2, the Part 3, which you can see in the description box. I'll give in the description or either by clicking on the I button, you can see. But today we have come up with the new numericals that is related to the planetary. Most of the students have the phobia related to these questions, like I'm taking here the two planets, X and Y, orbit around their sun. Y being 4 times farthest than the X from their sun, then the length of year on Y compared to X would be what? So this is our first question that we will be doing, but it's a request to you, all viewers that you are watching us this time. Please do not skip the videos until or unless you are not seeing the concept properly. So do not skip the videos so that you could have a proper concept about the numerical, how to solve them. हो सकता है एक क्वेश्चन में skip हो जाए that you can get from the another one. So it's a request. Please do not skip. And yes, one more thing, please subscribe the channels to stay connected with the latest updates of the Geo classes. So without wasting a time, let's start this. There are two planets. If we think about this, there are two planets. Let's say planet X is here, or X and Y orbit. Y being 4 times than the X. Let's say this is in Y. And here is a sun, whatever their sun is. So they are orbiting around their sun. So in this, what is happening? In the question, it is given that if let's say this is X, then the distance of this would be 4 times, that is 4x. Simple. This is the diagram. If you can try to think about it, so you'll come, the picturization will be something like this. Alright. तो इसको हमने सॉल्व करना है कि ये प्लेनेट जो है x और y जो है अपने सन के चारों ओर घूम रहे हैं, और जो y है वो x से 4 टाइम फार्थेस्ट है. ठीक है, ये इसका मतलब है. तो अब देखेंगे लेंथ ऑफ ईयर ऑन y वुड बी हाउ मच टाइम देन द x. हमें पूछा गया है कि यहाँ पे इस प्लेनेट पे ईयर में कितना डिफरेंस होगा जो ईयर का टाइम यहाँ पे होगा. Alright, as we all know that there are 8 planets in our solar system. हर किसी के प्लेनेट के लिए ईयर अलग अलग होता है. Getting my point or not? So कितना डिफरेंस होगा वो अब हम देखेंगे. उसके लिए हम पहले इसको इरेज कर देते हैं. Picturization is done. Imagination should be high to solve the numericals. Now there is a Kepler's law. अभी Kepler's laws की जब हम बात करेंगे तो Kepler's law play an important role, क्योंकि इसके लिए तो Kepler's law ही काम करते हैं. मेनली प्लेनेटरी लॉज जितने भी हमने बेसिक चीजें पढ़ी है, 4 लॉज हैं, 3 Kepler's के हैं, एक बोर्ड्स एंड टाइटस लॉ है which we'll be discussing later on. तो उस पे बेस्ड भी न्यूमेरिकल्स की पॉसिबिलिटीज हो सकती है कभी भी, तो दैट वी विल बी सीइंग लेटर ऑन. तो Kepler's लॉ जो है उसके अकॉर्डिंग, अब देखो ईयर का क्या मतलब होता है. Kepler's लॉ में ईयर का मतलब यहाँ पे होता है सीधा सिडेरल पीरियड. सिडेरल पीरियड, अब आपको याद आ गया होगा सिडेरल पीरियड के अकॉर्डिंग क्या होता है, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब. और कांस्टेंट को अगर हम यहाँ पे कांस्टेंट को हटा दें, क्योंकि कांस्टेंट तो दोनों के लिए सेम ही होगा ना, चाहे वो एक्स प्लेनेट हो चाहे वाई प्लेनेट हो, उसको हम रिमूव कर. ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखेंगे, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. हमारे पास आर दिया हुआ है, तो एक्स के लिए हम नहीं निकाल रहे फिलहाल, हम निकालते हैं डायरेक्ट वाई के लिए. वाई के लिए क्या बोला मैंने, टी स्क्वायर. ठीक है, तो टी स्क्वायर निकालना पड़ेगा तभी हमें पता चलेगा, और हमें एक्चुअली टी चाहिए. So dy square is happening. Dy square is equal to will be 4x cube. All right. So dy square is equal to will be 4 multiplied by 4 multiplied by 4 multiplied by x cube. इसका यही मतलब हुआ. So
ty square is equal to will be 64 x cube। तो अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है, सो ty is equal to will be 8, क्योंकि ये किसका अंडर रूट होगा, 8 का स्क्वायर है, अंडर रूट लगेगा, सो x to the power 3/2 ये एज इट इज रहेगा। ये था y के लिए। अगर हम x के लिए निकालें, सो tx इज इक्वल टू कितना हमारा हो जाएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू x क्यूब, दिस इज सिंपल, सो tx स्क्वायर इज इक्वल टू 1x क्यूब, लिख सकते हैं, 1 तो है ही यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो tx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है, अंडर रूट लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा सा लिख दो x to the power 3/2, ये हो गया। अब कितने टाइम्स, हमें तो दोनों का कंपैरिजन करना है, सो ये तो सेम ही है, और जो भी कांस्टेंट अगर हम फॉर्मूले में लगाते हैं यहाँ पे भी जो कांस्टेंट होगा, यहाँ पे भी कांस्टेंट होगा, वो सेम होगा, तो उससे हमें मतलब नहीं है। सो हाउ मेनी टाइम्स you are getting this, here is 1 and here is 8, so answer how many times lengthen will be this, so it will be 8 times lengthy। getting my point or not? So this is how we solve। तो नेक्स्ट टाइम से जब हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, हमें इस पोर्शन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम सीधा डायरेक्ट यहीं से करेंगे, क्योंकि हमें पता है इसको तो हमने यूनिट मान रखा है। लेट्स से कि पहले वाला जो प्लेनेट है वो यूनिट पे है, 1 यूनिट पे है, तो जितना भी यहाँ पे आंसर आएगा दैट विल बी अवर आंसर। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट हियर। ऑन अ फ्लैट टोपोग्राफी, ठीक है, ऑन अ फ्लैट टोपोग्राफी द आउटक्रॉप विड्थ ऑफ अ बेड इज 100 meters। let's say on a flat topography the outcrop width, let's say ये कोई outcrop है, इसकी फ्लैट टोपोग्राफी पे जो ये है width है वो 100 मीटर। if the true depth of the bed is 30 डिग्री, 30 डिग्री हो गया, तो हमें पता करना है एक्चुअल थिकनेस। अब एक्चुअल थिकनेस क्या होगी, अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, actual thickness is this one, na? But we are receiving this one, so actual thickness we have to find out. Let's say that is x. So this is our perpendicular. Simple trigonometry, we all know that बहुत सारे मेथड है, I don't know कि which methods, by which method you remember this. So जहाँ पे भी थीटा होता है उसके सामने वाला जो होता है वो perpendicular होता है, this becomes base and this becomes hypotenuse. So here what is given, the hypotenuse you are having, and you have to calculate the perpendicular. So Pandit Badri Prasad Har बोल, something like this we used to remember। आप कैसे याद रखते थे ट्रिग्नोमेट्री का, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। This formula is for sin theta, this is for cos theta, and this is for tan theta। Getting my point? So simply tan theta, the cos theta, and this is for sin theta। The formula is for जिसमें perpendicular भी हो, hypotenuse भी हो। So there is the first formula। So sin theta is equal to, क्या फॉर्मूला लगेगा हमारा, perpendicular that is x by hypotenuse that is 100, and we have to calculate the x। sin theta बोले तो sin 30 is equal to x by 100। Getting my point? And sin 30's value is 1/2 is equal to x by 100। Let's do to the cross multiply, 2x is equal to 100, x is equal to 50 meters। Clear or not? So like this you can solve out, the very easy, बहुत easily आप इसको solve कर सकते हैं। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, आप या तो वीडियोस को रिवाइंड करके देख सकते हैं, या फिर आगे जो क्वेश्चन आएगा उसमें हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट हियर। या two planet X and planet Y orbit around their sun, Y being 10 times farthest than the X from their sun, then the length of year on Y compared to X would be what? As we discussed in the last question, तो हम अभी इसको समझेंगे
कि किस तरह से हम इसको करना है। दोबारा से कैपिटल्स के लॉ के अकॉर्डिंग हम इसको समझेंगे। और अगर आप इंटरेस्टेड हो जियोमॉर्फोलॉजी के न्यूमेरिकल्स में, या फिर आप इंटरेस्टेड हो क्रिस्टलोग्राफी के न्यूमेरिकल्स में, तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में हमने डिस्कस किए हुए हैं ऑलरेडी, वो आप देख सकते हैं। ऑलराइट, सो लेट्स सी हियर planet X and planet Y. So as we all know that let the distance from sun of planet X is, let's say, A है. So distance from sun of planet Y will be 4A or not? Of course. So let's apply for year. We have ty निकालेंगे डायरेक्ट. Ty square is equal to क्या हो जाएगा हमारा? Not 4A, it's 10A. I'm sorry for that. Just remember the last question. So 10 times है 10A cube. All right. So this is what we have to do. So ty square is equal to, it becomes 10 multiplied by 10 multiplied by 10 into A cube. अब अगर हम इसको देखेंगे कितना आएगा ये, ty square is equal to 1000 A cube. Alright. अब 1000 का अंडर रूट अगर आपको निकालना है तो 1000 का अंडर रूट आप निकालेंगे 1000 under root 1000, wait a minute, under root 1000, which is equal to 31.62. So here ty is equal to becomes 31.62 a cube की power 2. So इससे हमारा मतलब भी नहीं है. So this much time it will be. So according to the options available in the question, if the questions is available, options available है 31 times, 32 times, 24 times, 10 times. So of course in this you are going 31 नहीं होगा ऑप्शन में कभी भी, ऐसे ऑप्शंस नहीं बनते हैं. There will be 32. You can take out 32. If 32 is not in the option, you can take out the 31 if it is in the option. So that's all up to the options. Option का selection करना भी एक important चीज है. Alright. So let's move to the next. Two planet X, planet Y being their sun 9 times farthest. So again same procedure we will be following. जिनको समझ में नहीं आया we can have once again a look, और जिनको समझ में आ गया they can try on their sheet. और बहुत easy है. ty square is equal to 9a cube. a लिखो या वेरिएबल, कुछ भी वेरिएबल आप ले सकते हैं, that's not a big deal. ty square is equal to 9 multiplied by 9 multiplied by 9 multiplied by a cube. All right. So if we see 9 multiplied by 9 multiplied by 9, so this becomes 729. ty square is equal to 729 a cube. So under root 729 we will be seeing under root 729, which is equal to 27. ty is equal to 27 a cube by 2. So this is here. How many times it will be? 27 times. Time larger. Year, length of a year on a y will be 27 times greater than that of the x. इसका मतलब सीधा सीधा सा ये हुआ. ठीक है. So now let's see the surprise packet that we have received, that we Geo classes have got. अभी देखते हैं उसको. सरप्राइज पैकेट है कुछ आपको, कल हम बता नहीं पाए थे लास्ट वीडियो में, तो आज हम बताते हैं आपको कि क्या क्या चीजें आपको मिल रही है, which you can avail by the free of cost here. So in the read category, whenever you will be login करने की जरूरत भी नहीं है. आप जियो क्लासेस पे जाएंगे तो आपको इस तरह से एक टैब मिल जाएगा. रीड पे अगर आप क्लिक करेंगे तो डेली नोट्स यहाँ पे अपडेट होते हैं, जो आप फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल इजीली देख सकते हैं. आपको कुछ लगता है कि आपको डिस्क्राइब करना है, यहाँ बहुत सारी कैटेगरीज हमने बनाई है, किसी में है किसी में नहीं है अभी डला हुआ, तो हम अभी काम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर.
प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी बहुत सारे हमने इसमें डाले हुए हैं। लास्ट 10 ईयर के एटलीस्ट हमने अभी कॉपी किए हुए हैं और हम 25 ईयर पे उसको शिफ्ट करेंगे धीरे धीरे से। सो गेट के, आईआईटी एग्जाम के, नेट के सारे पेपर्स हैं, आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है सिंस देयर इज ए प्रॉब्लम इन डाउनलोडिंग। अब डाउनलोड आपका बहुत सारा हो जाता है, आपको नहीं समझ में आ पाता है कैसे इसको आप रखो, कैसे सेव करो, तो आप मोबाइल ऐप हमारी डाउनलोड कर लो, वहां से आप इजीली एक्सेस कर सकते हो। दूसरा क्विज, फ्री क्विज आपको मिलती है जहाँ पे 10-12 क्वेश्चंस होते हैं एटलीस्ट। जैसे कोई सी भी क्विज आप स्टार्ट करो, देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस, हम धीरे धीरे से बनाते रहते हैं। तो जैसे क्विज के लिए आपको पासवर्ड चाहिए, ये लॉगिन आईडी होना चाहिए। तो अभी हम देखते हैं इसको सॉल्व करके। यस, अब क्वेश्चंस क्विज स्टार्ट हो गया। द थर्ड प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम फ्रॉम द वीनस, जो भी आपको आंसर टिक आउट करना है उस आंसर को आप टिक आउट कर सकते हैं वंस यू सबमिट। मैं कुछ भी टिक आउट कर रहा हूँ अभी जस्ट फॉर मैं इसको ध्यान नहीं दे रहा हूँ, तो आप मुझे बाद में ये मत बोलिएगा कि सर आपने गलत आंसर दिया है, बिकॉज ये जस्ट मैं एक डेमो आपको दिखा रहा हूँ हाउ इट वर्क्स। क्विज जो है आप इजीली दे सकते हैं, ये भी हम अपडेट करते रहते हैं वीकली। सबमिट टेस्ट करेंगे आप, यू वांट टू सबमिट टेस्ट, वंस यू सबमिट द टेस्ट यू गेट योर स्कोर, हाउ मच यू हैव स्कोर। 4 ऑप्शंस वाज करेक्ट एंड 4 पॉइंट आपके पॉजिटिव थे, ये थे। रिव्यू भी आप कर सकते हो, देयर आर सो मेनी थिंग्स इन दिस एज वेल। सो अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप देखें, लेट्स गो टू द डैशबोर्ड बैक वंस अगेन। ठीक है, होम पे अगर आप जाते हो, आपको जो जब आप मोबाइल ऐप डाउनलोड करोगे तो वहां पे आपको ये होम होम वाले बटन पे क्लिक करना है। नीचे डाउन टैब में होगा होम का बटन, इसी टाइप से ऑप्शन होंगे, तो होम के टैब पे आप क्लिक करोगे। देन इफ यू आर कमिंग डाउन, सो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये आपको सबसे लास्ट में मिलेगा नीचे के साइड में, यहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो मोबाइल ऐप से आप उसको भी कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा लर्निंग प्रोग्राम जो है, ई लर्निंग वाला जो प्रोग्राम है, टेस्ट हमारे हैं जो कि प्रॉपर एक टेस्ट है जिसमें कि सारी डिटेल्स आपको मिल जाती है देखने को। ई लर्निंग में हमारे पास ऑर्गेनाइज्ड वीडियोस हैं, ऐसा नहीं है कि हमने कहीं भी हैफजर्डली डाल दिया है। जियोलॉजी में जैसे आप चाहते हो तो जियोमॉर्फोलॉजी की कौन कौन सी वीडियोस हैं ये आप देख सकते हो इजीली। और अभी ये अपडेट और भी हो रहा है, इंट्रोडक्शन टू जियोमॉर्फोलॉजी, देन रीडिंग मटेरियल, स्टेप बाय स्टेप है। इसमें भी आपको प्रैक्टिस टेस्ट यहाँ पे अलग मिलते हैं और जो टेस्ट आपको यहाँ मिल रहे हैं वो अलग है। ये टेस्ट आपके अलग हैं और ई लर्निंग के जो टेस्ट हैं वो आपके अलग हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट यू रिसीव वीडियो सॉल्यूशंस। सो बहुत सारी चीजें हैं जो आप अवेल कर सकते हैं एज ए पार्ट ऑफ दी जियो क्लासेस प्रोडक्ट। ऑलराइट, सो टाइम नहीं वेस्ट करते, लेट्स कम टू वंस अगेन दिस थिंग, our numericals we was studying, trying to solve out। ये 9 times वाला हमने कर लिया था। Now let's move to the next question। On a flat topography, the outcrop width of a bed is 2000 meter. If the true dip of a bed is 30 degree, the actual thickness of bed in meters is, meters नहीं, ये meters आप काट दीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन मुझसे मिस्टेक हो गया है। बेड इज डैश किलोमीटर, ठीक है, तो हमें किलोमीटर में बताना है। लेट्स से ये फ्लैट टोपोग्राफी है कोई, यहाँ पे कोई बेड है जो कि कितना डिप कर रही है, 30 डिग्री डिप कर रही है। मैं कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा आपको कि कैसे आप इसको समझ सकते हैं। और ये आपके जो आउटक्रॉप थिकनेस थी ये 2000 मीटर है। वंस अगेन लेट्स ड्रॉ एन परपेंडिकुलर हियर। सो साइन थीटा का फॉर्मूला यहाँ पे भी लगेगा, साइन 30 इज इक्वल टू एक्स बाय 2000। आप बैक करके रिमाइंड करके देख सकते हैं कि कैसे हमने इसको सॉल्व किया है। और जियोमॉर्फोलॉजी के न्यूमेरिकल्स और क्रिस्टलोग्राफी के न्यूमेरिकल्स पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिए हैं। ओपन फॉर्म, क्लोज फॉर्म से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, उसको भी अगर आपको देखना है तो वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं, बट अभी यहाँ पे हम इसको देखते हैं। यस, एक्स ये हमें निकालना है। सो 1/2 इज इक्वल टू हियर एक्स बाय 2000, ठीक है, ऑलराइट। सो 2x इज इक्वल टू 2000, सो x इज इक्वल टू 1000। लेकिन आप आंसर 1000 नहीं लिखोगे, आपको किलोमीटर में देना है, तो इट्स 1 किलोमीटर ओनली, ठीक है। इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें,
किलोमीटर्स की। यूनिट का बहुत ध्यान रखना। आई हैव सीन सो मेनी क्वेरीज फ्रॉम द स्टूडेंट्स दैट सर मेरा पूरा आंसर सही था, मैंने यूनिट नहीं कन्वर्ट करी, मैं भूल गई या भूल गया, सो मेनी थिंग्स। सो आप इस पे प्रैक्टिस करते रहें, और प्रैक्टिस के लिए टेस्ट ऑलरेडी अवेलेबल है, मैंने आपको बताया। Yes, now another question, an important one. On a flat topography, the outer width of a bed is 100 meters. If the dip of a bed is 60 degree, 45 degree and 30 degree, the actual thickness of a bed is dash. अब आपके पास प्रॉब्लम आ गई, बेड की जो डिप है कहीं पे आ रही है 60 डिग्री, कहीं पे आ रही है 45 डिग्री, कहीं पे आ रही है 30 डिग्री। अब आप किस पे फोकस करोगे, किसको यूज करोगे? तो ट्रू डिप, हमेशा ट्रू डिप की अगर डेफिनेशन आप देखो तो ट्रू डिप की डेफिनेशन होती है मैक्सिमम ऑब्जर्व्ड डिप कैलकुलेटर। तो 60 डिग्री को हम यहाँ पे करेंगे। सो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू 100 बाय x. सो x इज इक्वल टू डायरेक्टली, अगर हम देखें तो 100 बाय, अभी देखते हैं इसको, 1 सेकेंड, लेट मी फाइंड आउट द वैल्यू। इसको पूरा सॉल्व करेंगे। साइन 60 की वैल्यूज जो होती है 0.86, 0.86, सो इज इक्वल टू 100 बाय x। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 100 बाय 0.866। अब डिवाइड करेंगे इसको, 100 divided by 0.866, so it's 115, 115.47, so meter. This will be your answer. If it's not given here, any unit is not given, दो यूनिट आपको यहाँ पे मिलेगी मीटर या किलोमीटर। अगर नहीं दी हुई है तो जिस यूनिट में लिखा हुआ है उसी यूनिट में आप निकालेंगे। That's the key point. 47. All right. So let's move to the next now. That's it for today, and thank you very much for watching and giving your time, and please keep sharing, subscribe channel, like or dislike as you feel like. You can rate it. Thank you so much.